اسرائیلی فوج کی زمینی راستے جنوبی لبنان میں پیش قدمی، صہیونی فوج کی بھاری اسلحہ اور توپوں کے ہمراہ جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش، پولاباٹ پر پہلا حملہ، اقوام متحدہ کی آرمڈ فورس اور لبنانی فوج بھاگ نکلی، حزب اللہ کے مجاہدین نے زیرو لائن کی چیک پوسٹوں پر پہنچ کر کمان سنبھالی، حزب اللہ نے اپنے رضوان فورس کی ویڈیو جاری کر دی، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیلی افواج کو پیغام، صہیونی جنگی طیاروں کے جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں پر حملے، بمباری میں 100 سے زائد افراد شہید، درجنوں زخمی، جنونی ریاست کے شامی دارالحکومت پر بھی وار، دمشق پر فضائی حملے میں خاتون اینکر سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے میڈیا تعلقات کے عہدیدار نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ محمد عفیف کا کہنا ہے کہ لبنانی سرحد میں تراندازی کا صہیونی دعویٰ سراسر غلط ہے۔ حزب اللہ اور قابض افواج کے درمیان کوئی براہ راست زمینی جھڑپیں نہیں ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی لیبنان میں داخل ہونے کی ہمت یا کوشش کرے گا، ہمارے مجاہدین دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے محدود کارروائیاں کر رہا ہے، امریکہ کا دعویٰ۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ جنگ بندی چاہتے ہیں مگر اسرائیلی فوج کے لبنان میں اسٹریٹجک مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کی ایران کو دھمکی، اسرائیل پر حملہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لائٹ آسٹن کی اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی حمایت۔ ایران اسرائیل پر میزائل حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں سینئر اہلکار نے کہا کہ امریکہ کو معلومات ملی ہے کہ ایران نے نصر اللہ اور قدس فورس کے ایک اعلیٰ کمانڈر عباس نیلفروشان کے قتل کا بدلہ لینے کا عزم کیا ہے۔ ہم اس حملے کے خلاف اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے دفاعی تیاریوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف براہ راست فوجی حملہ ایران کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ اسرائیل غزہ، ایران اور لبنان میں جارحیت اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے۔ پاکستان دیگر ممالک کی طرح دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری ہے، اقوام متحدہ بھی اسرائیل کے آگے بے بس ہے، کوئی مذہب دہشت گردی، قتل و غارت گری کی اجازت نہیں دیتا۔ آزادی ریاست ہوگی، ماں کی طرح ریاست ہوگی، ماں کی طرح ریاست بن گیا باپ کی طرح، اور اس میں بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے۔ مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ۔ آئینی عدالت بننا ضروری ہے، عامر کے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہمارے خاندان کا سفر کٹ پتلی سے شروع نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں وکلا سے خطاب، اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا۔ ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق حاصل ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج کے حالات بہت اچھے نہیں، لیکن حالات تو تب بھی بہت برے تھے جب ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل موقف رہا ہے، پورا یہ وعدہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا ایک وفاقی آئینی عدالت ایکول نمائندگی کے نہ ہونے کا نقصان اٹھایا ہے۔ توہین عدالت کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جج کے خلاف کچھ بولے تو آپ کو زندگی بھر کے لیے سزا ملے؟ کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا وکلا سے سوال پوچھا، کیا اظہار خیال کی آزادی یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے دیں، آپ وزیر اعظم کو نکال دیں، آپ 18ویں اور 19ویں ترمیم میں تبدیلی کریں اور ہم چوں تک نہ کر سکیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرٹیکل 63 پہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس کہا، جب آئین میں لکھ دیا ہے کہ نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا۔ ایک طرف رائے دی گئی ہے کہ منفرد رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا کہ نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے، یہ تو تضاد ہے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स पढ़कर सुनाए। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा जो वकला रह गए हैं उन्हें कल सुनेंगे। आप नज़र-ए-सानी के हामी हैं या मुखालिफ हैं? अली जफर से सवाल। मैं मुखालिफत करूंगा, चीफ जस्टिस को जवाब। तहरीक इंसाफ के वफ्द की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, आईनी तरमीम समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त जो कुछ कर रही है उस पर हमने गौर किया, कोई भी ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए जो रात के अंधेरे में हो। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऐलान करें कि आईनी तरमीम हो या ना हो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक में हुक्मरान अवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद बहरान खड़ा हो जाता है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस निज़ाम पर अवाम का बेतमाद नहीं रहा। यहाँ इलेक्शन में अवाम की अमानत के साथ ख़यानत की जाती है। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की मुंतखब करदा नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के वकला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। शुएब शाहीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। हम आईन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। शुएब शाहीन ने कहा कि हम तो गालम गलोच पर यकीन ही नहीं रखते, इस बहस में ना ही जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है, आप कहना चाहते हैं कि आपको इंसाफ तो मिल रहा है मगर यहाँ से नहीं कहीं और से मिल रहा है। पाकिस्तान से ट्रैकुमा के खात्मे का ऐलान तारीखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से ट्रैकुमा के खात्मे के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा बर वक्त इलाज से लोगों की जिंदगियां बचाई गई, उम्मीद है ट्रैकुमा की बीमारी वापस नहीं लौटेगी। पाकिस्तान से पोलियो और हेपेटाइटिस के खात्मे की भी ज़रूरत है। IMF की शराइत पूरी करने में FBR को मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली सहमाही में टैक्स आमदन में 101 अरब शॉर्टफॉल का खदशा। FBR का बैंक और कंपनियों से एडवांस टैक्स लेने का मंसूबा। फील्ड फॉर्मेशंस को FBR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। नॉन फाइलर्स और नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करना लाजिम। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट में दावा, सितंबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.9% रिकॉर्ड किया गया। सितंबर में महंगाई वज़ीर ख़ज़ाना की तवक्कुआत से भी कम रही। औसतन महंगाई सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार तशक्कुर, कहा अल्लाह के करम से किए गए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतबादिल कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का डीलर्स मार्जिन में इजाफे का मुतालबा। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारा मौजूदा डीलर्स मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 रुपये 40 पैसे लेती हैं। क्रेडिट कार्ड से फ्यूलिंग की जाती है तो बैंक 2 रुपये 80 पैसे लेता है। 1937 के कवानीन को अब तब्दील होना चाहिए। जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। पर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम, असमा बुखारी का जवाब, कहती हैं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई वीआईपी अंदाज में जेल काट रहे हैं। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज अपनी गंदी जबान से मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के जलसों के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मियांवाली में 7 रोज़ जबकि फैसलाबाद और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज। रेंजर्स तैनात। शहर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहरों और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने झंग में भी दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इस्तिग़ासा जुर्म साबित करने में कामयाब। कराची की ATC ने अग़वा बराए तावान का जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिमान ने डॉक्टर तालिब अजीज को गुलशन इकबाल से अग़वा किया। मुखबी के बेटे से 30 लाख रुपए तावान वसूल किया। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद रजा की अदालत में दलाइल।
लाहौर में नाबीना अफराद का माल रोड पर धरना, गवर्नर हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने रोक लिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई, 2 मुजाहिरीन जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी पंजाब को सख्ती न करने और मसाइल हल करने की हिदायत। कराची में हॉक्सवे के करीब गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। KMC फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, 7 वाटर बाउजर्स और रेस्क्यू टीमें समेत पाक बहरिया ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। तक्की में डाकुओं की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मुजाहिमत पर मजदूरों पर फायरिंग कर दी। एक मजदूर जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मजदूर का बेल चालकने से एक डाकू भी जख्मी, मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। सादिकाबाद से डाकुओं के हाथों अगवा शहरी शिकारपुर के कच्चे में कत्ल। मुखबी ताहिर महमूद को चंद रोज कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया था। रिहाई के एवज 1 करोड़ रुपए मांगे गए। ज़राए के मुताबिक तावान की अदायगी में ताखीर पर मुखबी को कत्ल किया गया। सिंध और पंजाब की पुलिस कच्चे के डाकुओं के आगे बेबस। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के पै दर पैवार, 24 घंटे के दौरान मजीद 103 डेंगू केसेस रिपोर्ट। रवां सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1358 तक पहुँच गई। 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 181 मरीज ज़ेर इलाज। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। नसीरात में रात गए हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में ताज़ा हमलों में 13 फलस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में भी इसराइली बमबारी, शोहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा। 50 ओवर्स पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 9 डिपार्टमेंटल टीमें शरीक। 19 मैचेस 5 शहरों एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल्स 13 और 14 अक्टूबर को होंगे। फाइनल 16 अक्टूबर को होगा। ओलंपियन सदफ सिद्दीकी का एजाज। IOC कोर्स के लिए मुंतखब सदफ सिद्दीकी ओलंपिक्स गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स समेत दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। माजी के नामवर अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। कमाल को मुशाबहत की वजह से पाकिस्तान का राज कपूर भी कहा जाता था। कमाल ने उर्दू और पंजाबी ज़बान की 80 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। और पाकिस्तानी बैंड जल ने बांग्लादेश में शानदार परफॉर्मेंस से रंग जमा दिए। मशहूर गानों की धुनों पर शायकीन झूमे बगैर ना रह पाए। हजारों शहरियों ने कॉन्सर्ट में शिरकत की।